हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष। टुडेज वी हैव द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू द साइकेट्रिक एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग इन अंडर द introduction of the mental health, definition of mental health, mental illness एंड वार्निंग साइन ऑफ द मेंटल इलनेस के बारे में देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल, डिफरेंस बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, मिसकॉन्सेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, डिफेंस मैकेनिज्म एंड फाइनली मेंटल टीम एंड कंक्लूजन के बारे में आज किस वीडियोस में, आज किस क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज किस वीडियोस को हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट वी हैव द इंट्रोडक्शन व्हाट इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज द इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आपकी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी ह्यूमन लाइफ का, जैसे कि आपकी फिजिकल हेल्थ होती है, सिमिलरली आपका मेंटल हेल्थ भी आपकी इम्पोर्टेंट होती है। मेंटल हेल्थ मतलब कि ये नहीं कि आपको डिसीज का एब्सेंट होना, नॉट मेरली ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज बट the sense of physical, psychological, social well-being। ऑलराइट, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड फिजिकल भी आपका वेलबींग होना। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज लाइक टू साइड, right? Physical and mental health like two side of coin and both side are independent, right? Both side are independent. It is the based on feeling, attitude, emotion, interest and values of the person, right? That influence thought, feeling, behavior and interaction. How to how our thought influence our बॉडी, ओवर एक्शन, फीलिंग, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। कैसे हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके का हमारा बिहेवियर है, क्या हमारा फीलिंग है, कैसे हमारे थॉट है, वो हमारे डेली वर्क लाइफ बैलेंस में अफेक्ट करते हैं। ओवरऑल आता है आपका मेंटल हेल्थ के अंदर। ऑलराइट, नर्सिंग स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड फॉर द होलिस्टिक केयर ऑफ, ऐसा नर्सिंग स्टूडेंट यू हैव टू मस्ट अंडरस्टैंड फॉर द कंप्रहेंसिव एंड होलिस्टिक केयर so that you can understand the patient and effectively plan the care and treatment. All right, so according to WHO, health is positive state of well-being. Health is positive state of well-being. People are in state of emotional, physical, social well-being and fulfill their responsibilities, function effectively in daily life and are satisfied with their interpersonal relationship and themselves. All right, so these definition are the according to WHO. WHO ने क्या कहा है? Positive state of well-being in which emotional, physical and social well-being and people who fulfill their responsibilities, daily function effectively, daily life, work and satisfy with their interpersonal relationship and themselves। खुद के साथ और interpersonal relationship के साथ well-being होना, satisfy होना। Alright, so mental health, next at WHO, a state of well-being where individual realize his or her potential, cope with normal stress की कंडीशन में वो cope up कर पाए, his or her उसका जो भी actual potential है, weakness उसको realize कर पाए, work productively, वर्क है वो इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली डेली लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर पाए, कंट्रीब्यूट करे कुछ सोसाइटी में, सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। सो दीज आर दी मेंटल हेल्थ। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ने डिफाइन किया है सिमुलटेनियसली सक्सेस एट दी वर्किंग, किसमें? सक्सेस एट वर्किंग, लिविंग एंड क्रिएटिंग विथ कैपेसिटी फॉर द नेचर एंड फ्लेक्सिबल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंस्टिंक्ट, conscience, other important people and reality. Right, so these are the definition and introduction of the mental health. Now we are talk about the mental illness. Mental illness is just opposite the mental health. All right, so mental illness क्या है? Mental illness, the term mental illness actually encompasses numerous psychiatric disorders. Just like illness that affect other part of body, they can vary in severity. Just like illness
they can affect various part of the body, and they are different in the severity. Mental illness collective term that refer the different type of mental condition, including those that affect your mood, your thinking, your behavior, to be classified as mental illness. Condition must cause like distress in life and reduce your ability to function in one and more areas of life, such as work, relationship, in social situation. All right, so this is a condition must cause distress in your life and reduce your ability to function, work effectively, more areas of your life, such as your work, your relationship, your social situation. All right, सो ऑल यूर सोशल सिचुएशन में आपकी वर्क लाइफ बैलेंस में, रिलेशनशिप में, राइट, प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाना, दिस आर डिफरेंट डिफरेंट आपका हो सकता है अकॉर्डिंग टू आपका सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, ये क्लासिफिकेशन इसका कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, जो कि आपके मूड को, आपकी फीलिंग को, आपके बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, आपकी डेली लाइफ बैलेंस को, आपकी वर्क लाइफ एबिलिटी को, और एरियाज सच एज आपका लाइफ हो गया, वर्क हो गया, रिलेशनशिप हो गया, सोशल सिचुएशन हो गए, ऑल दिस में अफेक्ट करती है। डिसऑर्डर अफेक्टिंग मूड, थिंकिंग एंड बिहेवियर, causes distress, impaired functioning, example depression, anxiety, schizophrenia, all about the mental illness. All right, so here is the warning sign of some warning sign of mental illness. First, persistent sadness, hopelessness. People may experience persistent sadness, continuously इसको sadness feel होना, hopelessness feel होना, lonely feel होना कि मेरा तो कोई साथ ही नहीं देता है, मैं अकेला महसूस करना ना, होपलेसनेस महसूस, असहाय महसूस करना, persistent continuous sad महसूस करना, withdrawal from the others, अदर लोगों से, सोसाइटी से विड्रॉलेबल होना, अपने आप को सेपरेट कर लेना, अपने आप को अलग कर लेना, एक्सट्रीम मूड स्विंगिंग, कंटिन्यूसली उसकी मूड स्विंगिंग होना, कभी बहुत ज़्यादा मूड उसका परसिस्टेंटली चेंज होते रहना, कभी बहुत ज़्यादा खुशी होना, कभी बहुत ज़्यादा सैड होना, कभी हैप्पी होना, कभी सोरो होना, एक्सेट्रा। पर्सनैलिटीज में उसकी चेंजेस देखने को मिलना, स्ट्रेंज आइडियाज और डिल्यूजन होना, एक्सेसिव एंजाइटी होना, प्रोलॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस होना, इनएबिलिटी टू कोप विद प्रॉब्लम इन डेली एक्टिविटीज से कोप अप करने में प्रॉब्लम होना, पुअर कंसंट्रेशन होना, राइट, चेंज इन द स्लीप एंड एपेटाइट में भूख लगने में और नींद के साइकिल में चेंजेस देखने को मिलना, फटिग होना, लो एनर्जी होना, फेयर होना, गिल्ट होना, वरी होना, इवन सुसाइडल थॉट होना। सो ऑल दीज आर द साइन ऑफ मेंटल इलनेस। ऑलराइट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल। सो मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट, राइट। सो ऑल हेल्दी इंडिविजुअल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इसमें हमारे हो सकते हैं। सो रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में रियलिस्टिक परसेप्शन होना, हु एम आई, खुद के बारे में, खुद की वीकनेस के बारे में, खुद की स्ट्रेंथ के बारे में, खुद के पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज के बारे में पता होना, परसीव द वर्ल्ड एज इट रियली एंड एज दे रियली आर, लोगों को जैसी चीज़ें, जैसे लोग हैं, जैसे वर्ड हैं, उनको एज इट इज परसीव करना, हैव वन पर्सनल आइडेंटिटी, खुद की पर्सनल आइडेंटिटी होना, एबल टू अप्रिसिएट एंड एंजॉय लाइफ, खुद की लाइफ का अप्रिसिएट कर पाना, एंजॉय कर पाना, फील रीजनेबली एंड सिक्योर एंड एडिक्वेट, रीजनेबल फील करना, सिक्योर फील करना, एडिक्वेट फील करना, एबल टू फेस द रियलिटीज को फेस करने में एबल होना, रिस्पेक्ट देमसेल्फ, खुद की रिस्पेक्ट करना, डेवलप रीजन एंड अचीवेबल गोल्स इन देयर लाइफ, की लाइफ में रीजनेबल एंड अचीवेबल गोल्स को सेट करना, आर हैप्पी विद देमसेल्फ इन देयर लाइफ्स, खुद के साथ और खुद की लाइफ के साथ हैप्पी होना, एबल टू गेट इनफ स्लीप, इनफ स्लीप को लेने के लिए कैपेबल होना, एबल होना, एबल टू फेस रियलिटीज को फेस करने के लिए कैपेबल होना, हैव अ सेंस ऑफ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, सेल्फ बर्थ हो गया, डिग्निटी हो गया, इसके लिए उसको रिस्पेक्टफुल होना, गुड सेल्फ स्टीम होना, स्ट्रेस होना, स्ट्रेस को प्रॉपर मैनेज कर पाना, हेल्दी रिलेशनशिप होना, इमोशनल लाइफ में बैलेंस होना,
वर्क में प्रोडक्टिविटी होना, एडेप्टेबिलिटी होना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू वर्क, एडेप्ट कर पाना, लाइफ में पर्पस होना, पर्पसफुल लिविंग होना। सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल। सिचुएशन के साथ, नेचर के साथ, देमसेल्फ खुद के साथ एंड अदर पीपल के साथ, खुद को एनवायरनमेंट के साथ एडप्ट कर पाना, प्रॉपर रिलेशनशिप होना, वर्क लाइफ बैलेंस होना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होना, काइंडनेस होना, पेशेंस होना, कंपैशन होना, ऑल दीज आर द साइन ऑफ मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल। राइट, नेक्स्ट here is the difference between mental health versus mental illness. फर्स्ट है मेंटल हेल्थ पॉजिटिव वेलबींग। पॉजिटिव वेलबींग होना, मेंटल इलनेस में क्या है, डिस्टर्ब थॉट बिहेवियर, उसका थॉट एंड बिहेवियर डिस्टर्ब होना। सेकंड है मेंटल हेल्थ में एवरीवन हैज इट, एवरीवन सभी के पास ये होता है, बट नॉट एवरीवन हैज इट। स्ट्रेंथ एंड कोपिंग, स्ट्रेंथ एंड कोपिंग होना, सिम्टम ऑफ डिसफंक्शन होना मेंटल इलनेस में। मेंटल हेल्थ में प्रोडक्टिविटी होना, मेंटल इलनेस में इम्पेयर्ड फंक्शनिंग होना, इम्पेयर्ड प्रोडक्टिविटी होना। मेंटल हेल्थ में एग्जाम्पल मैनेजिंग स्ट्रेस, प्रॉपर मैनेज कर पाना स्ट्रेस को। मेंटल इलनेस में डिप्रेशन होना, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाना। अनदर पॉइंट इज देयर एक्सेप्ट सेल्फ एंड अदर, मेंटल हेल्थ में खुद को एक्सेप्ट करना। मेंटल इलनेस में फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी होना, पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट होना। सेकंड है एबिलिटी टू कोप और टॉलरेट स्ट्रेस, स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाना प्रॉपर मेंटली हेल्दी पर्सन। मेंटली इल पर्सन इनेबल होना कोप ऑफ करने के लिए। एंड मेंटल हेल्थ में कैन रिटर्न टू नॉर्मल फंक्शनिंग इफ टेम्परेरी डिस्टर्ब। यदि पेशेंट आपका कोई भी पर्सन इंडिविजुअल मेंटली हेल्दी है, कुछ समय के लिए वो डिस्टर्ब हुआ है, तो वो वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है। वट मेंटल इलनेस है तो मैल एडेप्टिव उसका बिहेवियर होना। यूज साउंड जजमेंट टू मेक डिसीजन, साउंड जजमेंट होना, रेशनल डिसीजन लेना। और मेंटल इलनेस होगी तो क्या होगा, डिस्प्ले पुअर जजमेंट होना। और मेंटली जो हेल्थी होगा वो ऑप्टिमिस्टिक होगा, और मेंटली इलनेस होगा वो पेसिमिस्टिक होगा, नेगेटिव होगा, नकारात्मक उसकी सोच होगी। ऑलराइट, एबल टू परसीव रियलिटी, मेंटली हेल्थी पर्सन होगा वो रियलिटी को परसीव कर पाएगा इसी तरीके से, बट मेंटली इल होगा वो अनएबल टू परसीव रियलिटी, वो रियलिटी को परसीव नहीं कर पाएगा। मेंटली जो हेल्थी पर्सन होगा एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैपेबल होगा, एबल होगा। मेंटली इल पर्सन जो होगा वो इनेबल होगा, अनएबल होगा टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड प्रोडक्टिविटी डेली लाइफ। ऑलराइट, नेक्स्ट मिसकंसेप्शन अबाउट द मेंटल इलनेस। अब मेंटल इलनेस के बारे में बहुत सारे आपके मिसकंसेप्शन होते हैं, जिसमें से जो मेन मिसकंसेप्शन है उनके बारे में आपको बताता हूँ। मेंटल इलनेस इज अ डिसग्रेस एंड वन शुड बी ashamed of it। मेंटल इलनेस को क्या माना जाता है, मेंटल इलनेस इज अ डिसग्रेस, राइट, ये डिसग्रेस है एंड वन शुड बी ashamed of it। और किसी को यदि हो गया है तो उसको ashamed, राइट, उसको कैसा महसूस होता है कि किसी व्यक्ति को ये मेंटल इलनेस होना ये डिसग्रेस है ना, डिसग्रेस है, ये अच्छा नहीं होता है और ashamed फीलिंग होती है, राइट। दूसरा जो होता है मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस इज ड्यू टू द पोसेशन ऑफ इविल और स्पिरिट, राइट। कॉज बाय किसकी वजह से, इविल, घोस्ट की वजह से हो रहा है, या कोई स्पिरिट की वजह से हो रहा है, कोई आत्मा की वजह से हो रहा है, भूत प्रेत की वजह से हो रहा है, ऐसा एक मिसकॉन्सेप्शन होता है। इनमेट ऑफ अ मेंटल हॉस्पिटल आर अनकंट्रोलेबल ब्रूट्स। अब क्या होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर भी मोस्ट पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट इनमेट of mental hospital are uncontrolled brute who assault visitor, talk to spirit or रेफ एंड रेंट, राइट। तो हॉस्पिटल में ऐसा माना जाता है कि जो मेंटल हॉस्पिटल्स में होते हैं वहाँ पर मोस्ट पीपल का एक मिसकंसेप्शन है कि हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो अनकंट्रोल हमको ब्रूट्स का असॉल्ट करेंगे, हमको विजिटर को भी असॉल्ट करेंगे और हमारे को क्या करेंगे, वो वहाँ पर हमको पनिशमेंट करेंगे। इस तरीके से उनका एक क्या होता है कि मिसकॉन्सेप्शन होता है।
नेक्स्ट है पेशेंट और वॉयलेंट। ऐसा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि जो मेंटल हेल्थ में जो पेशेंट होते हैं वो वॉयलेंट बिहेवियर होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, राइट। मेंटल इलनेस इज इनक्यूरेबल। ऐसा मिसकॉन्सेप्शन है कि मेंटल इलनेस यदि किसी को एक बार हो गई है तो वो क्यूर नहीं हो सकती। दिस आर दी इनक्यूरेबल, जबकि ये क्यूरेबल है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा प्रोलॉन्ग टाइम लगता है बट हम उसे क्यूर कर सकते हैं, हम उसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। ओनली वीक माइंडेड सफर। लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो कमजोर दिमाग के लोग होते हैं, वीक माइंडेड होते हैं, वही मेंटल इलनेस से सफर करते हैं। मेडिसिन अलोन क्यूर ऑल। कुछ ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि मेडिसिन ही सब कुछ क्यूर कर सकती है, बट ऐसा नहीं है। मेडिसिन के साथ साथ आपको थेरेपीज हो गया, आपका बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको आपको रोल प्ले हो गया, बहुत सारी चीज़ों का यूज होता है। पीपल विथ मेंटल इलनेस हैव नथिंग पॉजिटिव टू कंट्रीब्यूट। जो मेंटल इलनेस के पीपल है उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कंट्रीब्यूट कर पाए, तो एक ये मिसकॉन्सेप्शन है। पीपल themselves आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मेंटल इशू। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति है वह खुद ही उसके मेंटल इशू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओनली वीक पीपल सफर फ्रॉम द मेंटल प्रॉब्लम, दीज आर ऑल्सो एंड कैन नॉट लिव नॉर्मल लाइफ। ऐसा माना जाता है कि ऐसा मिसकॉन्सेप्शन है कि जो मेंटल इलनेस पर्सन है वह नॉर्मल लाइफ को लिविंग नहीं कर सकता, नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। पीपल विथ मेंटल डिसऑर्डर आर लेजी। जिनको मेंटल डिसऑर्डर होता है वह लेजी होते हैं। ओनली ओल्ड पीपल सफर फ्रॉम द मेंटल सिकनेस लाइक डिप्रेशन। ओनली ओल्ड पीपल ही, ओल्ड लोग ही मेंटल इलनेस से सफर करते हैं, लाइक डिप्रेशन से, राइट। पीपल कैन गेट बेटर बाय टेकिंग देयर मेडिकेशन। पीपल दवाइयाँ लेकर के ही सिर्फ बेटर हो सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। पीपल विथ मेंटल इशू कैन गेट रिड ऑफ इट इफ दे वांट टू, राइट। सीवियर मेंटल डिसऑर्डर आर इनक्यूरेबल। मेंटल सीवियर डिसऑर्डर इनक्यूरेबल है। मोस्ट फैमिलीज हैव हैड और हैव एट लीस्ट वन मेंटली इल इंडिविजुअल इन देयर हिस्टोरीज, राइट। ऐसा माना जाता है कि मोस्ट ऑफ द फैमिली में एक मेंटली इल इंडिविजुअल होता है इन स्टोरीज पहले के समय में। पीपल themselves आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मेंटल इशू। पीपल विद सम मेंटल इशू लाइक स्किज़ोफ्रेनिया आर वायलेंट। लोगों को यदि कुछ मेंटल इशू है लाइक स्किज़ोफ्रेनिया है तो उनका वायलेंट बिहेवियर होगा, वो मारपीट करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। दिस और द मिसकॉन्सेप्शन। मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय मास्टरबेशन एंड ओवर इंडल्ज इन सेक्स। मेंटल इलनेस है जो कॉज होती है बाय मास्टरबेशन से, ओवर इंडल्ज होती है इन दी सेक्स से, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी और ईसीटी इज द अनसिविलाइज्ड वे टू ट्रीट पीपल। ईसीटी एक मशीन के बारे में बहुत ज़्यादा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि आपको एक झटका देने के लिए, इलेक्ट्रिकल शॉक देने के लिए एक मशीन लगाई जाती है और उससे आपको ट्रीट किया जाता है, जो कि अनसिविलाइज वे है ट्रीट करने का, राइट। विद टाइम इट विल गो अवे बाय इटसेल्फ। और ऐसा माना जाता है कि समय के साथ ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। You have to take medication, you have to go to psychologist, or you have to consult with the psychiatrist. These are the misconception, all right. So these are the main misconception I have taught about you. And next one is the principle of mental health. Principle of mental health, first is the accept the patient exactly as he or she is. Accept patient as person as he or she is. Accept the person, right. Not you have to some not acceptance means being non-judgmental, right. You have to non-judgmental. You have to you have to uh, accept will lower the anxiety and convey नॉन थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट करना, जजमेंटल नहीं होना कि ये पेशेंट ऐसा है तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसा है उसको वैसा ऐसा पर्सन उसको नॉर्मल पर्सन ही एक्सेप्ट करना। बीइंग नॉन जजमेंटल होना, सो बीइंग सिंसियरली एंड इंटरेस्ट, उसकी तरफ सिंसियर होना, इंटरेस्ट शो करना, रिकॉग्नाइज एंड रिफ्लेक्ट करना ऑन फीलिंग विच पेशेंट में एक्सप्रेस। पेशेंट जो भी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना, केयरफुली उसको एक्टिव लिसनिंग करना, अलाउ द पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग।
पेशेंट को अलाउ करना, अलाउ द पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग, टॉक विद द पर्पस, पर्पस के साथ उससे बात करना। सो दीज आर द एक्सेप्ट पेशेंट एज द पर्सन। बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, पेशेंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करना, पेशेंट के साथ अच्छे से बिहेव करना। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेराप्यूटिक टूल, खुद को अंडरस्टैंडिंग करना एज अ साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्स। You nurse should have realistic self concept and should able to recognize her own feeling, right? खुद को अंडरस्टैंड करना, खुद की ओन फीलिंग को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड लीड अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट, पेशेंट को भी अंडरस्टैंड करना। यूज थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, थेराप्यूटिक से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन है वही कम्युनिकेशन करना ताकि पेशेंट भी रिकवर कर पाए। एनकरेज इंडिपेंडेंस, पेशेंट को इंडिपेंडेंसली एनकरेज करना, जो भी उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है उसको परफॉर्म करने के लिए उसको मोटिवेट करना, एनकरेज करना। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, इनकेस पेशेंट ने आपको कोई भी चीज़ें बताई हैं तो उनको कॉन्फिडेंट रखना, किसी अदर पर्सन के साथ, किसी अदर पेशेंट के साथ शेयर ना करना। प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करना। रिकॉग्नाइज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना। यूज कंसिस्टेंट बिहेवियर टू इंक्रीज द पेशेंट इमोशनल मैच्योरिटी। नेक्स्ट है गिव रीअश्योरेंस टू क्लाइंट इन अ सुटेबल एंड एक्सेप्टेबल मैनर, पेशेंट को अश्योर करना, रीअश्योर करना क्लाइंट को इन सुटेबल एंड एक्सेप्टेबल मैनर्स में। चेंज द पेशेंट बिहेवियर थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट मे बी रेशनल इंटरप्रिटेशन, पेशेंट का जो बिहेवियर है वह चेंज करना थ्रू द इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ, नॉट रेशनली उसको इंटरप्रिटेट करना। एंड प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट, पेशेंट को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। रिकॉग्नाइज ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिससे कि पेशेंट में कुछ भी वहाँ पर जो शार्प इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ भी आर्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट ना हो, कुछ ग्लास हो गया, नीडल हो गया, नाइफ वगैरह हो गया, राइट, ऐसा कुछ भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर शार्प प्रेजेंट ना हो जिससे कि पेशेंट सेल्फ को और अदर को हार्म कर पाए। सो सेफ एंड कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। रिकॉग्नाइज स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ क्या है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको एनकरेज करना कि वो पार्टिसिपेट करें उसको और स्ट्रेंथ को यूज करें, उसकी कैपेबिलिटीज को। वर्क विद द फैमिली एंड टीम, फैमिली के साथ एंड टीम के साथ प्रॉपर एडजस्ट करके वर्क कर पाए उसको रिकॉग्नाइज करना। अवॉइड अप्रोच विच विल इंक्रीज द क्लाइंट अननेसेसरी एंजाइटी, अवॉइड अप्रोच, अप्रोच को अवॉइड करना जो कि आपका विल इंक्रीज द क्लाइंट अननेसेसरी एंजाइटी, अननेसेसरी एंजाइटी को क्या करती है वो रिड्यूस करना। ऑब्जेक्टिवली हैज टू बी मेंटेन इन अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट बिहेवियर, ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना, अंडरस्टैंड करने के लिए क्लाइंट के बिहेवियर को। मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करना। अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स, फिजिकल एंड वर्बल फोर्स को अवॉइड करना मच एज पॉसिबल। और नेक्स्ट आपका प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू द पेशेंट अ पर्सन नॉट मेयरली टू कंट्रोल सिम्टम ऑफ डिसीज और सिम्टम ऑफ द पेशेंट है। नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना पेशेंट को एज अ पर्सन नॉट मेयरली टू कंट्रोल सिम्टम्स और symptoms that patient has, right? Explain routine and procedure at the patient level of understanding, patient के level of understanding से मान लो जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी रूटीन्स है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, उनको एवरी पेशेंट को उसको राइट है उसको सही तरीके से उसको बताना, जो भी वो अंडरस्टैंडिंग उसका लेवल है उसके अकॉर्डिंग। मेंटेन एंड रिटेन द बेसिक नर्सिंग प्रिंसिपल to suit the patient while performing the ward nursing procedure, alright? Maintain and retain, proper maintain and retain करना basic nursing principle को जो कि patient को suit करते हो perform करते समय आपका nursing procedure, alright? So these are the principle. Now defense mechanism, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम इन डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट ले लेते हैं। फर्स्ट डिनाइल, डिनाइल मीन्स की रिफ्यूजिंग रियलिटी, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना, उससे रिफ्यूज करना, उससे डिनाइल करना, दिस इज डिनाइल। डिप्रेशन, फॉरगेटिंग पेनफुल थॉट, जो भी आपका पेनफुल थॉट है उनको आप कॉन्शियसली उनको फॉरगेट करना, राइट?
प्रोजेक्शन, एट्रीब्यूटिंग ऑन फीलिंग टू दी अदर्स, अपनी फीलिंग को क्या करना, दूसरों के ऊपर एट्रीब्यूट करना, दिस आर द प्रोजेक्शन। रिग्रेशन में क्या है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर करना। डिसप्लेसमेंट, शिफ्टिंग इमोशन, इमोशन को शिफ्ट करना। सब्लिमिनेशन और चैलेंजिंग इम्पल्स पॉजिटिवली, जो भी इम्पल्स उनको पॉजिटिवली चैलेंज करना। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ टीम। तो मेंटल हेल्थ टीम के अंदर आते हैं साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट वो होते हैं जो कि ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं, डायग्नोज करते हैं पेशेंट की डिसीज को और ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं, क्या क्या पेशेंट को ट्रीटमेंट देना, थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट। इसके बाद आते हैं आपके साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट आपके काउंसलिंग करते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, थेरेपी भी दे सकते हैं, टेस्टिंग करते हैं और डायग्नोस भी करते हैं, राइट, टेस्टिंग करते हैं। साइकेट्रिक जो नर्स होती है वो केयर देती है पेशेंट को और एजुकेशन देती है। सोशल वर्कर्स जो होते हैं वो रिहेबिलिटेट करते हैं पेशेंट को, सपोर्ट करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं दिस आर दी वोकेशनल ट्रेनिंग, इनको वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स होते हैं। और काउंसलर जो होते हैं इमोशनल सपोर्ट देते हैं पेशेंट को। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो होते हैं वो आउटरीच करते हैं पेशेंट को कम्युनिटी में। ऑलराइट, so these are the last slide. Thank you for watching this, thank you for listening me patiently. I hope you have understand all this. If you have any doubt regarding this you may ask. ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली सम अप। यहाँ पर हमने देखा मेंटल हेल्थ का इंट्रोडक्शन के बारे में, मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल इलनेस के बारे में जाना, मेंटल इलनेस और हेल्थ, वार्निंग साइन ऑफ द पुअर मेंटल हेल्थ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल, डिफरेंस बिटवीन मेंटल हेल्थ के बारे में जाना। मिसकॉन्सेप्शन कौन कौन से होते हैं जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं मिसकॉन्सेप्शन। प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या क्या प्रिंसिपल हैं उनके बारे में जाना। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में जाना, मेंटल हेल्थ टीम के बारे में जाना। आई होप यू गोट इट। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।